دشمنوں کو ذلیل کر دینے والا نبوی وظیفہ ہے یہ عمل ہے قل اعوذ برب الناس کا اور قل اعوذ برب الفلق کا۔ حاسدین کو اپنی پڑ جائے گی، دشمن دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ کا۔ آخری دو صورتیں یا آخری دو کل 11 آیات ہیں یہ ٹوٹل، یعنی فلق اور ناس کو اکٹھا کریں گے تو یہ 11 آیتیں بنے گی۔ 30 پارے کی آخری یہ دو صورتیں ہیں۔ اللہ والو، ان صورتوں کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے۔ یہ دو صورتیں مفسرین قرآن کا یہ قول ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہیں، جبکہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مخالفین کی مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ جو لوگ ابتدائی طور پر اسلام قبول کر چکے تھے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، جینا محال کر دیا، مخالفت حد سے بڑھ گئی۔ تو جب ہجرت کا وقت قریب تھا تو اللہ رب العزت نے ان 2 صورتوں کو اتارا کہ یہ پڑھ کے اپنے دشمنوں کی طرف پھونک دیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ان کے اندر سے جو کینہ ہے، جو بغض ہے، جو حسد ہے انہوں نے پال رکھا، اسے نکال دے گا۔ پھر جب مدینہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یثرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو آپ کے قدموں کے صدقے اللہ رب العزت نے یثرب کو مدینہ پاک بنا دیا، شہر مدینہ بنا دیا۔ تو وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو حضرت جبرائیل امین یہ 11 آیات لے کر اترے، یعنی یہ آخری 2 کل 11 گرہ لگی ہوئی تھی دھاگے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 11 آیات ایک ایک کر کے پڑھی اور ان 11 گرہ کو کھولتے گئے اور طبیعت حشاش بشاش ہوتی گئی۔ جو آپ پر دباؤ تھا وہ بھی سارا ختم ہو گیا۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس میں آپ کے ہو سکتا ہے کسی ایک مسئلے کا حل ہو، کسی ایک پریشانی کا حل ہو، کسی ایک ایسی حاجت کا حل ہو جو آپ کی بہت عرصے سے، سالوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ والو، اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو سن لیں، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، آپ کی کوئی مصیبت ٹل جائے، یا آپ کی کوئی ایسی حاجت پوری ہونے میں یہ ویڈیو آپ کی مددگار ثابت ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ یقین کریں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ جادو کا وہ اثر ختم ہو گیا، یعنی جو گرہ لگائی گئی تھی وہ کھلتی گئی اور جو بندش تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اللہ والو، مختصر کر کے یہ ساری تاریخ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اللہ والو، اگر گھر میں مخالفت ہے، محلے میں مخالفت ہے، شریکے میں مخالفت ہے، برادری میں مخالفت ہے یا دشمنی پڑ گئی ہے تو اللہ والو، عمل جن لوگوں نے عمل کا پوچھا ہے انہوں نے دشمنی کا ہی پوچھا ہے۔ اگر کہیں پہ دشمنی ہے، مقدمہ بازی ہے، تھانہ کچہری کا مسئلہ ہے، آپس میں رنجش ہے، یا گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہے، بچے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے ہیں، اور ایک بڑے پتے کی بات آپ کو بتاؤں، اللہ والو ذرا میری طرف توجہ کیجئے گا، اور ایک پتے کی بات آپ کو بتانے لگی ہوں جو بے حد ضروری ہے، جس کو ہم بالکل عام بات سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے، میری مائیں، میری بہنیں اگر اس مسئلے سے دوچار ہیں تو وہ یہ بات فوری طور پہ سن لیں اور میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ خواتین کو اگر جوئیں پڑ جاتی ہیں، یعنی کہ خواتین کے سر میں جوئیں بار بار جوئیں پڑ جاتی ہیں، یا پھر اسی طرح سے اگر چھوٹے بچے ہیں ان کے بال الجھ جاتے ہیں، بالوں میں گنجل پڑ جاتے ہیں، اٹکیں پڑ جاتی ہیں،
एक तो होता है ना गंदगी की वजह से, जो लोग नहाते नहीं हैं, तहारत नहीं इख्तियार करते। दूसरी तरफ अल्लाह वालों, जादू की बहुत बड़ी अलामत में से एक अलामत ये भी होती है औरतों के अंदर, जब जादू अपनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है, यानी कि जादू जब इंतहा से बढ़ जाता है तो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, बाल उलझना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों, मैंने बहुत सारी ऐसी लोगों के बाल देखे हैं, ऐसी औरतों के बाल देखे हैं जो ऐसे है जैसे कोई च्युइंगम लगाकर उनके बालों को जोड़ दिया गया है और उनको टिंड करवानी पड़ी अपने बालों को दोबारा उगाने के लिए। तो ये जादू जब शिद्दत इख्तियार करता है, इंतहा को पहुंचता है, तो मेरी माएँ और मेरी बहनें इस चीज़ का शिकार होती हैं। बाल उलझना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं, या फिर बालों में जुएं पड़ जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर मर्द हजरात हैं तो उनका भी यही हाल हो जाता है, उनकी दाढ़ी में जुएं पड़ जाती हैं। अल्लाह वालों, आपकी इस बहन ने सब कुछ भुगता हुआ है, मैंने हर चीज़ अपने ऊपर भुगती है, मेरे साथ ये तमाम मामलात हो चुके हैं। इसलिए तो अल्लाह वालों, आपको हौसला देती हूँ कि वो कौन सी मुसीबत है, वो कौन सी परेशानी है, वो कौन सा ऐसा वार है जो इस फकीरनी ने अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं किया। तो अल्लाह वालों, अगर मुझे इनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इन सब वारों से, ऐसे जादू से, ऐसी मुसीबतों से बचा सकता है, तो आपको क्यों नहीं बचा सकता? शर्त ये है कि अमाल वाली ज़िंदगी हो। अल्लाह वालों, आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि जब आमना के लाल पर जादू हुआ था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या बीती होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जादू चलने दिया ताकि उम्मत की तालीम हो। अल्लाह वालों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू ना हुआ होता तो आज मुझे जो तकलीफ आई है, मेरा रहबर कौन होता, मेरा मसीहा कौन होता, मुझे सीधे रास्ते पे कौन डालता कि मैं ये काम करूं तो ऐसा होगा, इसका असर, ये मेरी मुसीबत, ये मेरी तकलीफ टल जाएगी। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस टाइम मेरे लिए उस्वे हुस्ना कौन होता, मेरे लिए हौसला देने वाला कौन होता? हज़रत इमाम हुसैन का सर अगर नेज़े पर ना चढ़ता तो तबलीग करने वाले को हौसला कहाँ से मिलता? अल्लाह वालों, मौला हुसैन की शहादत यही तो है जो हमें सब्र देती है। तो अल्लाह वालों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू ना होता तो आज हमें तालीम कैसे मिलती, आपको मैं कैसे समझाती? उम्मत के जो उल्मा हैं, मुफस्सिरीन हैं, अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाती, कोई परेशानी आ जाती, तो वो रहनुमाई कहाँ से लेते? तो ये दो सूरतें ऐसी हैं, अगर आपकी दुश्मनी है और आप पर जादू है, जादू शिद्दत इख्तियार कर चुका है, अगर आपकी रुकावत नफरतें हैं, अगर आपके घर में सब बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, बच्चे लड़ते झगड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या फिर औरतें हैं उनके बाल गिरते हैं या जुएं पड़ जाती हैं, तो अल्लाह वालों, यही दो सूरतें, सूरतुन नास और सूरतुल फलक, 21 बार पानी पर पढ़कर, 21 बार सुबह पढ़नी है और 21 बार शाम को, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम के साथ आपने पढ़ना है और पानी पर दम कर लेना है। उस पानी को अपने घर में छिड़कें और अल्लाह वालों, घर की सबसे पिछली दीवार से आपने पानी को छिड़कना शुरू करना है और आगे तक, गेट तक आ जाना है। आपने गेट से शुरू नहीं करना, आपने सबसे आखिर वाली दीवार से शुरू करना है और गेट तक आना है। अल्लाह वालों, शावर में डाल लें पानी और तमाम घर में छिड़कें और फिर यही पानी आप तमाम घर वाले पिएं, बच्चे भी बड़े भी। दूध में डाल लें, आटे में डाल लें, चाय में डाल लें, या फिर हंडिया बनाते हुए सालन में डाल लें। 21 बार सुबह और 21 बार शाम, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ 21 दिन मुसलसल ये अमल आपने जारी रखना है। अल्लाह वालों, 21 दिन मुसलसल आपने इस अमल को जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताअलाहुल अजीज, अल्लाह दुश्मनी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह तेरे दुश्मनों को जलील व ख़वार करवा देंगे, वो तेरा सामना नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ऐसा रुसवा करके दिखाएगा, ऐसा जलील करके दिखाएगा। और इसी तरह बीमारी है, सर में जुएं हैं,
या घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, बेबरकती है, बेसकूनी है, मियाँ बीवी घर में बैठे हैं और एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, बात तलाक तक पहुंच जाती है। अगर इसी तरह के मामलात हैं या फिर किसी ने आपको बता दिया है कि आप पर जादू है, तो अल्लाह वालों इन तमाम मसाइल का हल इन दो सूरतों में मौजूद है। और तमाम रूहानी मसाइल का हल इन सूरतों में जितने भी मसाइल हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, आपस की लड़ाइयाँ हैं, नफरत है, जादू है, नजर बद है, काली नज़र है, इन तमाम मसाइल का हल किस में है? इन 11 आयात में। और 21 दिन का अमल है और 21 बार सुबह और 21 बार शाम को आपने अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़कर पानी पर दम करना है। अब मेरी माएँ और बहनें मेरे से सवाल पूछेंगी कि नापाकी के दिनों में अगर वो 21 दिन नहीं पूरे कर सकती, उसमें नापाकी के दिन शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या करेंगी? पहली बात तो ये है कि जब आप पाकीज़गी की हालत में आ जाएं तो आप उस वक्त शुरू करें, इंशाल्लाह 21 दिन पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं होते तो आपने इसको वजीफा समझ कर करना है, नागा बिल्कुल आपने नहीं करना। ठीक हो गया? अब मेरा ख्याल है कि मेरी बहनों को समझ आ गई होगी कि आपने इसको वजीफा समझ के करना है, कुरान समझ के तिलावत नहीं करनी। वजीफा समझ के करेंगी तो कोई हर्ज नहीं है। और घर में आपने वो पानी छिड़कना है जो आपने दम किया है, तमाम घर वालों ने वो पानी पीना है। और अगर दुश्मनी के लिए पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर की हवा चला देगा। उसके बाद हर नमाज जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं, 21 दिन आपने पढ़ लिया, 21 बार सुबह और 21 बार शाम, 21 दिन के बाद आपने हर नमाज के बाद 3 बार ये 2 कुल पढ़ने हैं। क़यामत तक भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जिंदगी देगा तो इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज कभी आपको नजर बद नहीं लगेगी और आपके ऊपर जादू का वार कामयाब नहीं होगा। अल्लाह वालों, जादू होगा लेकिन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जादू करने वाले तो करेंगे, उनको तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों पर कुफर की मोहर लगा दी है। अल्लाह उनको, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको नेकी की हदायत दे। अल्लाह वालों, वो सब कुछ करते रहेंगे, नजर बद वाले नजरें लगाते रहेंगे, हसद करने वाले हसद की नजर लगाते रहेंगे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कुछ नहीं होने देगा इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज। अल्लाह वालों, जब रात को पढ़ेंगे सोने से पहले तो आपने पढ़ने के बाद अपने हाथों पर फूंक मार लेनी है और पूरे जिस्म पर हाथ फेरना है जहां तक आपका हाथ जाए। बस ये क्या हो गया? ये आपका बदनी हसार हो गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 सूरतें पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारते और हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लेते। अल्लाह वालों, ये हमारे नबी की सुन्नत भी हमने पूरी करनी है और अपनी हिफाजत भी करनी है। और जितनी भी शैतानी असरात होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ख़त्म फरमा देंगे। जादू के असरात को, नजर बद के असरात को, हसद के असरात को अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म फरमा देंगे। आपने इस अमल को छोड़ना नहीं है, आपने ये अमल करते रहना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको कैसे मौजज़ात देखने को मिलते हैं। अल्लाह वालों, अगर आप 3 काम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको किसी भी मुसीबत में मुब्तला होने नहीं देंगे। तो वो 3 काम कौन से हैं? सबसे पहला काम, आपने 5 वक़्त नमाज की पाबंदी शुरू कर देनी है। अल्लाह वालों, अगर आप पहले 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ते तो आज से आपने 5 वक़्त नमाज की पाबंदी शुरू कर देनी है। आपने 5 वक़्त नमाज पाबंदी के साथ अदा करने के साथ साथ दूसरा अमल ये करना है कि हर टाइम आपने बावज़ू रहना है। आप जब भी वॉशरूम में जाएं, जब भी आपको हाजत हो तो आप बाहर निकलते हुए वज़ू कर लें। आपने हाथ भी तो धोने हैं, आप हाथ जब धोने लगे तो आप वज़ू कर सकते हैं। तो जब तक आपका वज़ू चले आप वज़ू करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू में रहें और रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत कुरान मजीद, फुरकान हमीद को खोलें और उसको पढ़ें। चाहे आप 1 लाइन पढ़ें, चाहे आप पूरा सिपारा पढ़ें। अल्लाह वालों,
तीसरा और आखिरी अमल जो बेहद ज़रूरी है, जो सबसे ख़ास है, तवज्जो मेरी तरफ है मेरे बहन भाइयों की, ज़रा तवज्जो को मेरी तरफ कर लें, ये बात बहुत अहम है। तीसरा अमल आपने अपनी ज़िंदगी में ये शामिल करना है कि आप बद नज़र ना हो, यानी कि आपकी नज़र पाक हो, आपकी तन्हाइयाँ पाक हों। आप तन्हाई में भी कोई ऐसा अमल मुरतब करने से पहले अपने रब से डर जाएं कि कोई मुझे देखे या ना देखे, मेरा रब मुझे देख रहा है, क्योंकि मैंने अपने रब के सामने पेश होना है, मैंने जवाब अपने रब को देना है। कोई मुझे नहीं देख रहा, लेकिन जिसको मैंने जवाब देना है वो मुझे देख रहा है। अल्लाह वालों, अगर आप इस बात से डर जाते हैं और उस गुनाह को नहीं करते तो आप यकीन करें आपका रब आप पर राजी हो जाएगा और आप पर अपनी रहमत ऐसे लुटाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि मैंने ऐसा कौन सा अमल शुरू कर दिया है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझ पर इतना करम किया है। अल्लाह वालों, ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो रोज़ाना की बुनियाद पर। नमाज का जब आपने जवाब देना है तो फिर नमाज पढ़ने में ताख़ीर क्यों? आप नमाज की पाबंदी करें, कुरान की पाबंदी करें, जितनी आपकी हैसियत है, यानी कि जितना आपके पास टाइम है सिर्फ उतना ही पढ़ लें। कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है। और अगर कोई मामलात हैं तो आपने ये 2 सूरतें अपने अमल में लेकर आनी है। इन 2 सूरतों की इतनी फजीलत है, अगर मैं बयान करने लगूं तो मेरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। अल्लाह वालों, इस 2 सूरतों को अपने अमल में लेकर आए, रोजाना की बुनियाद पर पढ़ें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें, अपने घर की करें, मालो दौलत की करें, अपने कारोबार की हिफाजत करें, दुश्मनों से जान छुड़ाएं, हसदों से जान छुड़ाएं। छोटा सा अमल है, 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको, और 2-3 मिनट भी ज्यादा हैं। अगर आप रोजाना इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपकी जुबान में इतनी तासीर आ जाती है कि आप जब पढ़ेंगे, पढ़कर आप अपने मुंह से कोई भी लफ्ज अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पूरा फरमा देंगे। अल्लाह वालों, ये काम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो कभी भी आपको मायूसी आपका मुकद्दर नहीं बन सकती। दुनिया में इज्जत, शोहरत, दौलत, पैसा, कामयाबी, रुतबा, मर्तबा, हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अता फरमाएगा। कारोबार इतनी तरक्की करेगा, इतनी तरक्की करेगा कि आपकी सोच है। तो अल्लाह वालों, उम्मीद करती हूँ कि मैंने छोटा सा मुख्तसर सा बयान आपके साथ शेयर किया है, आप इस पर अमल करेंगे। यकीन करें कि आप अगर इस पर अमल कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के ख़जाने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से आपकी मदद फरमाना शुरू कर देंगे। अल्लाह वालों, ये इंतहाई ज़रूरी काम है, इनको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।